السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ کل سے جزوی طور پر بین الاقوامی پروازوں کے لیے فضائی حدود کھول رہے ہیں۔ فضائی آپریشن بیرون ملک کام کرنے والوں کے لیے معاون ہوگا۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے کورونا وبا کے دوران حوصلے سے کام لیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی کورونا وبا کے دوران ہم وطن بھائیوں کی مدد قابل فخر ہے۔ واپس آنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو حکومت ہر ممکن سہولت دے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ قومی اداروں کو نقصان سے نکالنا، فعال اور مستحکم بنانا حکومتی ایجنڈے کا اہم جز۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت PIA میں اصلاحات کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس۔ قومی ایئر لائن میں انتظامی اصلاحات مزید تیز کرنے کے ساتھ تمام موجود وسائل کا شفاف طریقے سے استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کورونا کے سماجی اور اقتصادی اثرات میں کمی، صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ۔ عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو $1500 ملین دیں گے۔ اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب میں موجود۔ وزیر اعظم عمران خان کی کراچی، گھوٹکی اور لاڑکانہ میں احساس کیش ڈسٹریبیوشن پوائنٹس اور رینجرز اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت اور افسوس کا اظہار۔ متعلقہ اداروں سے واقعات کی رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم کے حملوں میں شہید ہونے والے رینجرز اہلکار اور شہریوں کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی بھی دعا۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 6,604 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ تعداد 1,71,666 تک جا پہنچی۔ مزید 153 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,382 جاں بحق، 63,504 صحت یاب۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست منظور۔ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف ریفرنس خارج کر دیا۔ انکم ٹیکس لینڈ ریونیو کمشنر کو 7 روز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کو نوٹس جاری کر کے برطانیہ میں تینوں جائیدادوں کے بارے تفصیل معلوم کرنے کی ہدایت۔ حکومت فیصلے سے مطمئن، ججز کے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ لندن میں 3 فلیٹس اور منی ٹریل کی تفصیل جمع کرانا ہوگی۔ چیئرمین FBR سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس۔ حکومت پاکستان کا فضائی سفر کرنے والوں کے لیے بڑا فیصلہ۔ سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان سے بین الاقوامی اور کارگو فلائٹس کا سلسلہ بحال کر دیا۔ کورونا وبا کے پیش نظر آمد و رفت اتھارٹیز کے جاری کردہ SOPs کے مطابق ہوگی۔ بلوچستان کے آئندہ مالی سال 2020-21 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ شام 4 بجے صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی پیش کریں گے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 87,56,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,62,501 سے زیادہ ہلاک، 46,25,000 صحت یاب۔ امریکہ میں 22,97,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,21,407 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 42 اضلاع میں انسداد ٹڈی دل مہم بھرپور جاری۔ 8,335 مربع کلومیٹر رقبے میں کنٹرول آپریشن، 3,24,600 مربع کلومیٹر رقبے پر سروے۔ کل ملک میں سورج گرہن ہوگا۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں سورج 90% چاند کے پیچھے چھپ جائے گا۔ مکمل سورج گرہن کا دورانیہ 1 گھنٹہ 50 منٹ کا ہوگا۔ پاکستان میں رنگ آف فائر کا نظارہ سکھر سے گوادر تک کیا جا سکے گا۔ آج اسلام آباد، بالائی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ صوبہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات اور PCB کی جانب سے تمام ڈومیسٹک کرکٹرز اور کوچز کے کانٹریکٹس میں 1 ماہ کی توسیع۔ 30 جون کو ختم ہونے والے کانٹریکٹس میں 31 جولائی تک توسیع کر دی گئی۔
کھلاڑیوں اور کوچز کا 12 ماہ پر مشتمل آئندہ سالانہ کانٹریکٹ 1 اگست سے شروع ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن میں۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ السلام علیکم۔ پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی حاضر ہے۔ ناظرین، کرونا ایک ایسی وبا جس نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اب تک لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بھی یہ وبا آئی۔ ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ چند 100 لوگ اس کا شکار ہوئے، ہم نے پرواہ نہیں کی، تیزی سے مرض بڑھتا گیا اور یہ وبا سینکڑوں کا سفر کر کے ہزاروں اور ہزاروں کے بعد اب لاکھوں میں پہنچ چکی۔ بڑی افسوس کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ آنے والے ماہ جو ہیں، جولائی کا اگست کا مہینہ کہتے ہیں پیک ہوگی اور پاکستان میں بہت زیادہ کرونا کے مریض ہوں گے۔ یہ پریشان کن خبریں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اچھی خبریں بھی ہیں کہ جہاں پہ ہزاروں افراد، لاکھوں افراد اس مرض کا شکار ہوئے، وہاں پہ ہزاروں افراد نے صحت یاب ہو کے اس کے خلاف جنگ بھی کی، اور نہ صرف جنگ کی بلکہ جیتی بھی۔ ایسے ہی ایک گھر میں آیا ہوں، بریگیڈیئر خالد محمود عباسی صاحب، ایک بڑا نام ہے، جن کو کرونا ہوا، ان کی فیملی کے کچھ اور لوگوں کو کرونا ہوا، لیکن ایک دلیر سپاہی کی طرح انہوں نے کرونا کا مقابلہ کیا، کرونا کو شکست دی، اور اب وہ صحت یاب ہیں اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ سمٹم کیا تھے کہ آپ کو کرونا ہو گیا؟ پھر آپ نے اس کرونا کا مقابلہ کیسے کیا؟ ڈاکٹروں سے کیسے رائے لی؟ باقی لوگوں کی طرح ہم نے بھی بڑی احتیاط کی۔ فیملی میں یہ اب بڑا مشکل ہے یہ سرٹن کرنا کہ یہ آئی کہاں سے، لیکن جب یہ آئی تو جو ہمیں سمپٹمز ہوئے وہ یہ تھے کہ ایک لو گریڈ فیور ہوتا ہے 99 100 101 یہ فیور ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا جو بڑا سمپٹم ہے وہ یہ ہے کہ باڈی پینز ہوتی ہیں، پیٹ لوز ہو سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتی ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، میں چاہوں گا کہ مجھے بریگیڈیئر خالد محمود صاحب بتائیں کہ ان کو کیسے ہوا، ان کی فیلنگ کیا تھی جب یہ ہو گیا، آپ کو کیا کیا ہوتا تھا؟ مجھے تو جی اللہ ہیز بین ویری کائنڈ کہ مجھے صرف اور صرف ٹمپریچر ہوا تھا۔ آپ کو ٹمپریچر ہوا، پھر اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس گئے؟ ہم نہیں ڈاکٹر کے پاس گئے، میرے بھائی ہوتے ہیں ڈاکٹر ہیں، وہ امریکہ میں ڈیلس میں، تو ان کو ہم نے فون کیا، پھر وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہے، اور جس طریقے سے وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہے ہم اسی طریقے سے پھر ہم عمل کرتے رہے۔ تو ہم ہاسپٹل نہیں گئے، ہم نے، کیونکہ اس کا علاج تو ہاسپٹل میں ہے نہیں، تو جو چیزیں انہوں نے بتائیں وہ ہم گھر میں آرام سے کر سکتے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ایک اپنے گھر میں آئسولیٹ کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک اپنے گھر کی ایک SOP بنائی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کیسے میل جول رکھنا ہے، کتنے فاصلے پہ رہنا ہے، کھانا ہم نے کیسے کھانا ہے، کھانا کیا کیا کھانا ہے،
ہر چیز کی ہم نے ایک SOP بنا لی. یہ بہت اچھا ہو گیا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی, صحت دی. اب ایک اور خاص بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بریگیڈیئر صاحب, کہ ہم نے دیکھا کہ جو صحت یاب لوگ ہو جاتے ہیں ان کا پلازما بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس وقت بھی لاکھوں لوگ جو ہیں اس مرض کا شکار ہیں, پلازمے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ڈرا ہوا بندہ نہیں ہوتا صحت یاب ہونے کے بعد, کیا وہ پلازما دینے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ 1-2 دفعہ پلازما وہ دے سکتا ہے. اگر ایسی ضرورت پیش آئی تو بریگیڈیئر صاحب آپ دیکھیں جی, آپ ایک بریگیڈیئر سے سوال کر رہے ہیں, ہم تو اس ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہے, پلازما تو بہت چھوٹی سی. ٹھیک, ڈرنے کی اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے. میں آلریڈی بات کر چکا ہوں اسسٹنٹ کمشنر سے اور باقی جو ہائی اپس ہیں کہ میں اور میری فیملی جو ہے وہ پلازما دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں صرف ایک فریم ورک کی ضرورت ہے, گائیڈنس کی ضرورت ہے. گورنمنٹ لیول پہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس پورے ایفرٹ کو ایک ڈائریکشن دی جائے تاکہ جو لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ فائدہ اس طریقے سے نہ اٹھایا جائے, اور جو حقدار ہیں یا جن لوگوں تک یہ پہنچنا چاہیے ان تک یہ گورنمنٹ کے ذریعے پہنچے. یہ بڑا زبردست اور بڑا امپارٹنٹ آپ نے میرے سوال سے پہلے ہی جواب دیا کہ کچھ لوگ, میں تو ان کو بے ضمیر لوگ کہوں گا, کہ اگر وہ اس پہ بزنس کرتے ہیں, لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو ہزاروں میں یا لاکھوں میں بیچتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں اس کا کوئی آئیڈیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں سب سے پہلے تو حکومت پاکستان کو اس کی تعریف کرنا چاہوں گا. تو انہوں نے ہم سے خود رابطہ کیا اور وہ خود گھر پہ آئے ہمارے ٹیسٹنگ کے لیے, اور تمام لوگوں کا انہوں نے ٹیسٹ کیا اور وہ فری آف کاسٹ تھا, تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اسی طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ ان پلیس کرنا چاہیے, ٹریکنگ سسٹم کہ جو لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس ان کا پورا ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ ان کو خود اپروچ کرے اور ان کو موٹیویٹ کرے کہ یہ پلازما دیں. ناظرین, جس طرح تھوڑی دیر پہلے ہم بریگیڈیئر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, خالد محمود صاحب سے, میرے ساتھ ان کی مسز ہیں, مسز معصومہ خالد. ان کو بھی کرونا ہوا لیکن انہوں نے بھی ریکور کیا. بہت اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. ہر ایک کے سمٹم الگ ہوتے ہیں. جب آپ کو کرونا ہوا آپ کو کیسے پتا چلا, آپ کا علاج کیسے ہوا؟ مجھے جب کرونا ہوا تو میرے سمٹم بالکل ایسے تھے کہ میں شام کو 6 بجے کا ٹائم تھا, میں کھڑی ہوئی تھی تو مجھے ایک دم سے ایسا فیل ہوا کہ جیسے مجھے اوپر سے کسی نے اٹھا کے نیچے پھینک دیا. میں ہسبینڈ کے پاس گئی ہوں, باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے جا کے ان سے کہا, میں نے کہا مجھے کچھ بڑی عجیب سی فیلنگ آ رہی ہیں, بڑی تھکاوٹ سی ہو رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی کچھ ایسا رسپانس نہیں دیا, تو میں آ کے کمرے میں لیٹی ہوں. تو تھوڑی دیر کے بعد ہی نا مجھے ایک دم سے نا فیلنگ ایسے ٹیمپریچر کی آنی شروع ہوگی. میں نے اپنا ٹیمپریچر چیک کیا تو مجھے 100 ٹیمپریچر تھا, اور اس کے بعد مجھے شدید باڈی پین سٹارٹ ہو گیا. ساتھ ہی مجھے یہ نیوز ملی کہ ان کے کزن ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, ان کو پازیٹیو آیا. وہ ہماری فیملی کے فرسٹ ممبر تھے جن کو پازیٹیو آیا. آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی, میری ان سے ملاقات ہوئی. 2-3 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی. تو وہ ساری رات مجھے ہر 4 گھنٹے کے بعد ٹیمپریچر ہوتا رہا, باڈی پین ہوتا رہا, اور اس کے بعد مجھے وہ میرا پیٹ لوز ہو گیا. مجھے وہ تمام سمٹمز ہوئے. اور تیسرے دن جو آپ نے ٹیلی ویژن پہ سنے تھے, جو ڈاکٹر بتا رہے تھے, ایگزیکٹلی مجھے وہ تمام سمٹمز ہوئے جو کہ میری فیملی میں بہت کم لوگوں کو ہوئے, کسی کو ہوئے کسی کو نہیں ہوئے, لیکن مجھے وہ سارے سمٹمز ہوئے. اور تیسرے دن میں گر کے بے ہوش بھی ہو گئی, اور مجھے اٹھا کے ایمرجنسی میں لے کر گئے, جس میں ڈاکٹرز نے کہا کہ بی پی لو ہے, اور ہمیں پی ایف آرمی سے ہیں ہم, تو اس لیے ہمیں پی ایف ہاسپٹل سوٹ کرتا ہے, تو ہمیں وہاں لے گئے اٹھا کر مجھے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ڈرپس وغیرہ لگائیں, اور انہوں نے کہا کہ بی پی لو ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوئی ہے. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا میم کہ آپ نے ریکور کر لیا. کتنے دنوں میں آپ؟ جی, میں نے جو ریکوری کی ہے وہ 10 ڈیز میں کی ہے. جی, اس لیے کہ میں تھوڑا سا میرا پروسیس تھوڑا سا زیادہ تھا اس کا. یہ جو کرونا کا جو سمٹمز تھے میرے اوپر, تقریباً تمام سمٹمز میرے پہ وہ ہوئے جو فیملی میں کسی پہ اتنے زیادہ نہیں ہوئے, تو اس کی وجہ سے پھر میں نے ریکوری میں بھی تھوڑا ٹائم لیا. مجھے 10 ڈیز تقریباً لگے. مجھے فیور بھی ہوتا رہا, پہلے ہر 4 گھنٹے کے بعد ہوتا تھا, 3-4 ڈیز مجھے اس طرح چلتا رہا. اس کے بعد پھر مجھے 8 گھنٹے کے بعد, پھر 12 گھنٹے کے بعد. ایک اور کوشچن میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص, ایک مرد, ایک عورت
मौत को इतने करीब से देख लेता है, इतना बड़ा एक सिम्टम देख लेता है, इतना बड़ा कोरोना जिसका खौफ भी है, उससे सेहतयाब हो जाता है। फिर वही बंदा जो लोगों के लिए एक निजात का जरिया बन सकता है, दूसरों को जिंदगी दे सकता है, वो चंद रुपयों की खातिर अपना प्लाज्मा बेचे। बहुत गलत बात है। मैं तो नहीं समझती कि ऐसा होना चाहिए। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं भी ये इसमें शामिल हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरा प्लाज्मा अगर किसी के काम आए और मेरी वजह से कोई ठीक हो जाए, तो हम सबको, मुझे क्या, मेरी पूरी फैमिली को बहुत खुशी होगी कि हम सब लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, जब हम कोरोना की बात करते हैं, रिकवरी की बात करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग और ख़ास तौर पे यूथ, नौजवान इस वबा से घबराते नहीं हैं। हम देखें वैसे ही फिर रहे होते हैं। शायद उनको अवेयरनेस है, लेकिन वो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, या क्या है। इसी यूथ से पूछते हैं। लाइबा है हमारे साथ, लाइबा के साथ हुज़ैफा है, हुज़ैफा के साथ सादिया है, तो हम कोशिश करेंगे तीनों से थोड़ी थोड़ी बात हो। लाइबा, हमने देखा कि ये जो यूथ है हमारा दारोमदार नौजवानों पे है, मुस्तकबिल का सारा दारोमदार नौजवानों पे है। एक बड़ी वबा हमारे पास है, लाखों लोग इसका शिकार हो चुके हैं। ये मास्क नहीं लगाते, ये बाहर जाते हैं सैनिटाइज नहीं करते अपने आप को, बस गैदरिंग में होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो कहते हैं कि ये तो फैलता जा रहा है। यूथ जिम्मेदार नहीं है, उसको अवेयरनेस नहीं है, या वो परवाह नहीं कर रहे। शायद तीनों चीज़ें हो सकती हैं, जिम्मेदार नहीं है, अवेयरनेस नहीं है और परवाह नहीं कर रहे, क्योंकि यूथ है, टीनेजर्स हैं, उनको अपनी पार्टीज़ करनी है, उनको सारी चीज़ें लेकर चलनी है साथ, और वो घर में नहीं बैठ सकते। और जैसे कि मुझे हुआ था जब, तो उससे पहले प्रिकॉशंस वगैरह ली थी हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा मुझे दी थी इन्होंने, मेरे रोज़े छुड़वा दिए थे और सारा कुछ वही हो रहा था। लेकिन उसके बाद भी फिर भी मुझे हुआ, प्रिकॉशंस के बाद भी मुझे लगा कोरोना, और उसके बाद भी फिर जो है ठीक हुई मैंने प्रिकॉशंस भी ली। एक और चीज़, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या फिर वो आपके दोस्तों की एक पूरी लॉबी है, आपने अपनी असेसमेंट से जज किया कि उनको अवेयरनेस है? नहीं, उनको अवेयरनेस है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लापरवाही बहुत कम लोग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा यूथ करता है, बहुत 50% लोग हैं जो करते हैं लापरवाही, और 50% लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है, और वो बिल्कुल इनको पता है, अवेयरनेस है कि कोरोना क्या चीज़ है, कोरोना क्या होती है। बल्कि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत से लोगों ने मेरे से उसके बाद पूछा कि आप हमें बताओ, आप हमें गाइड करो, और मैंने उनको गाइड भी किया, उनको अवेयर भी किया इस चीज़ से। तो है, अवेयरनेस है। मेरा कैमरा हाजिर है, इसकी वसादत से आप पूरी दुनिया में जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको सुन पाएंगे। उनको एक मैसेज दें कि यूथ ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, तो उनको क्या कहेंगे कि कोरोना के हवाले से वो क्या तदाबीर करें? मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्रिकॉशंस लें और इसको सीरियस लें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज़ है, इससे घबराना है, और क्योंकि ये आपकी जान भी जा सकती है, इससे कुछ भी हो सकता है आपको। कुछ लोग हैं जिनको सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी डेथ्स हो रही हैं। आप अपने आप को आइसोलेट कर लें अपने घर पे, आप क्योंकि हॉस्पिटल में अपने आप को आइसोलेट करेंगे, आपकी जो मेंटालिटी है, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत वीक हो जाती है। वीक हो जाते हो जाता। आपसे बात कर लेते हैं। एक जर्नल तासर है, और हमने एज ए जर्नलिस्ट ये देखा भी है कि कुछ हकीकत के करीब भी है कि जो लड़की होती है वो ज़्यादा जिम्मेदार है पढ़ाई में, या फिर उसके अलावा हम उसको देखते हैं कि इस तरह की एहतियाती तदाबीर में लड़के नहीं करते। इस हवाले से, कोरोना के हवाले से आपकी क्या असेसमेंट है? लड़कों को अवेयरनेस है, एहतियात करते हैं? मैं ना रिसेंटली इंग्लैंड से आया हूँ। मैं जब आया तो मुझे अपने पेरेंट्स का पता चला था, मैं इसी वजह से पाकिस्तान आया। इंग्लैंड में मैंने देखा कि वहाँ पर जो लड़के हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, वो सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं। लड़कियाँ इस मामले में अपनी केयर करती हैं, लड़के जो हैं वो नहीं करते, क्योंकि लड़के आउटगोइंग होते हैं ज़्यादातर, वो जाते हैं बाहर दोस्तों से मिलते हैं, उनको नहीं परवाह। मेरे ख्याल से होना ये चाहिए कि लड़कों को इस बात की समझ आनी चाहिए कि उनके घर में उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि काफ़ी ओल्ड एज है, ठीक है। लड़के तो टीनेजर्स हैं, अपनी 20s में, लेट 20s में, घर में उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि काफ़ी ओल्ड एज हैं, जिनमें कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो कि अगर उनको कोरोना होता है तो खुदा न खास्ता ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है उनके लिए। आप जहाँ पे अभी रिहाइश पजीर हैं, ये D12 के करीब है ये एरिया, लेकिन गिरदो नवा में एक बड़ी आबादी जो है, देही इलाका है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, बिलखसूस
ख़वातीन, बच्चे, कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम आपने देखा? हुकूमत की पॉलिसी को ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? इंतज़ामिया जिस तरह इलाकों को सील करती है, आप समझते हैं कि वो लोग जानबूझ के नहीं कर रहे? जानबूझ के कौन मौत को करीब करता है? अवेयरनेस है उनको? इस्लामाबाद में अवेयरनेस है, मैं कहूँगी, क्योंकि मैं जब जिना सुपर, F10 मरकज, ये सब, यहाँ पे लोगों ने मास्क पहने हुए। अब करना क्या चाहिए? ये जो सूरत हाल है आपके सामने, अगर एक बहुत बड़ी तादाद इसको इग्नोर कर रही है, सख्ती करनी चाहिए, जुर्माना करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि जो आपको शायद पता हो कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत कंट्रोलेबल होगी ये सिचुएशन, केसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो उन्होंने यही किया है, पेनल्टीज, फाइन करना लोगों को और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। हमने पढ़े लिखे नौजवानों से बात की, ब्रिगेडियर साहब से बात की, उनकी फैमिली से बात की। हम शाह अलादित्ता के कुर्ब जवार में मौजूद हैं, D12 शाह अलादित्ता, ये तकरीबन एक जैसा इलाका है, और उनके साथ जो गांव है, गांव की एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्ग खातून, अल्लाह वाली खातून ज़ेबुल निसा, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। आपसे अगर हम बात करें कि कोरोना ये जो बीमारी आई हुई है, लोगों को हो रही है, बहुत लोग परेशान भी हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? बहुत ज्यादा परेशान, इस मारोइया के जवान बच्चा है, बाहरों आया है, बीमार हो गया है, पता नहीं क्या उसे। अल्लाह ना लाख लाख शुक्र है, और जितना मैं उसका शुक्र अदा करूं कम है। मैं अपने घरे में दवाइयां, असा बाहरों कोई दवाई नहीं की, डॉक्टर को कोई दवाई नहीं की, अपने घर में दवाइयां इस्तेमाल की। असा ज्यादातर लसन हो गया, अदरक हो गई, इस नाकावा वगैरह जितना भी है असा ये चीज़ा इस्तेमाल की, पैनाडॉल इस्तेमाल की है, और कोई बाहर नहीं दवाई असा कोई इस्तेमाल नहीं की। ये हमारे मासूम बच्चे, हमारे मुस्तकबिल का सरमाया, इनको अवेयरनेस देनी है। आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत मैसेज ये आपको कोरोना के हवाले से देंगे, इन्हीं की ज़बानी सुनिए। Whenever you come home, wash your hands or put hand sanitizer, and whenever you go out, wear a mask and put a little hand sanitizer in your pocket. नाज़रीन, अब हम देखें कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के तासरात आपने सुने। इसी के साथ हम देखें कि आर्टिस्ट किस तरह सोचता है। नीलम है मेरे साथ, नीलम आर्टिस्ट है, और इस हवाले से ड्रामा, TV ड्रामा बहुत सारी जगहों पे। नीलम, कैसे देखते हैं आप, अपने फनकारों को कैसे मैसेज देंगे कि कोरोना पे जो है उन्होंने एहतियाती तदाबीर करनी? मेरा पैगाम ये है कि जब आप घर जाते हैं, फैमिली से थोड़ा दूर आए, सबसे पहले आप हाथ धोएं साबुन से, ठीक है, उसके बाद सैनिटाइजर लगाएं, फिर फैमिली को मिले, बच्चों को मिले, क्योंकि हमारी जिंदगी के साथ हमें उनका भी ख्याल रखना है। डॉक्टर उसामा, आज जो हम देख रहे हैं कि तेजी से इजाफा हो रहा है, वजह क्या है? जिस तरह कहते हैं, इस तरह के खासतौर से मेडिसिन में लोग यही कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ पे लोग प्रिकॉशंस बिल्कुल नहीं ले रहे। जो ईद पे और आखिरी अशरे में जो लोगों ने जितना शॉपिंग्स की हैं और जो गैदरिंग्स वगैरह हुई हैं, उसकी वजह से एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज की है, डिजीज स्प्रेड एक्सपोनेंशियली की है। अब अनफॉर्चुनेटली लोग ये कर रहे हैं कि दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड विद दिस डिजीज। लोग ये शक करते हैं कि अगर तो हमें कोरोना है तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। इट हैज़ नॉट बिकम अ टैबू। हालांकि ऐसी बात नहीं है, इट इज़ जस्ट अ डिजीज। यहाँ पे लोग आएँ ताकि उनको अर्ली आइडेंटिफाई करके उनको बेहतर ट्रीटमेंट कर सकें। ये इसके अंदर इलाज अपने बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। घबराने की ऐसा इसमें कोई बात नहीं है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब यही है कि हम उसके अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी मेडिकेशंस हैं, वो हम स्टार्ट कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट पे हम नज़र रख सकें कि अगर तो खुदा ना खासा पेशेंट डिटेरियोरेट कर रहा है तो हम उसको प्रीएम्प्टिवली उसको ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइज करना हो तो हॉस्पिटलाइज कर दें। अगर फर्दर ट्रीटमेंट, अगर कोई भी स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत है वो स्टार्ट कर दें। प्लाज्मा की बात हो रही है, प्लाज्मा इसकी क्या, क्योंकि इसकी खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? प्लाज्मा, सबसे पहले तो मैं ये कन्वे करना चाहता हूँ कि प्लाज्मा इट इज़ जस्ट अ थ्योरी, क्योंकि कुछ वायरसेस, वायरल इन्फेक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें प्लाज्मा इफेक्टिव होता है, लेकिन ये जो कोविड जो डिजीज है, दिस इज अ न्यू डिजीज। इसमें हमें नहीं पता कि इसमें कितना इफेक्टिव होगा। अभी भी रिसर्च चल रहा है। देयर इज नो
एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस जिसमें हम कह सकें कि हाँ इसका फ़ायदा होगा. लेकिन यस ये है कि अटेम्प्ट एक है, अगर तो इस पर पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड कर जाता है ट्रीटमेंट के साथ तो फिर बहुत अच्छी बात है. मैसेज हो जाए. बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं. अभी देखिए हम मास्क लगाते हैं लेकिन उसके लिए बहुत सारे लोग इग्नोर भी करते हैं, नज़रअंदाज. उनके लिए मैसेज लोग अभी भी यहाँ पे आके भी हमें यही कहते हैं कि जी कोविड कोरोना कोई चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट अ मिथ. लेकिन बिलीव यू मी, हम जिस तरह यहाँ पे हमारा सिस्टम अभी ओवरवेलम हो रहा है, हमारे जो जितने भी डॉक्टर्स हैं दे आर पुटिंग देयर लाइव्स एट रिस्क बिकॉज ऑफ दिस डिजीज. इट इज़ अ वेरी सीरियस डिजीज. ओल्ड एज और यंग ग्रुप जो है, ओल्ड एज से मतलब है 50 एंड अबव, जिनके खास तौर पे अगर किसी को अगर ब्लड प्रेशर शुगर उस तरह के मसले हैं, और बच्चे 10-12 साल से नीचे, दे आर एट हाई रिस्क. उनको अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है तो दे आर एट अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस वेरी क्विकली. जो मिडिल एज ग्रुप है बिलो 40 एंड अबव 20, उनको कोविड हो जाता है तो इनके बॉडी रिजर्व्स इतने होते हैं, इनकी बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी होती है कि वो डिफेंड कर लेते हैं, वो फाइट ऑफ कर देते हैं. और यही ग्रुप है जो कि बाहर भी निकलता है, यही ग्रुप है जो कि डीलिंग भी हो रही होती हैं, और यही ग्रुप है जिसको सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए. अगेन मैं आई कैनॉट एम्फसाइज दिस इनफ कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. और प्रिकॉशंस क्या हैं? मास्क, ग्लव्स, डिस्टेंस. यही अगर कर सकते हैं तो इससे आपकी डिजीज अच्छी खासी आपकी कंट्रोल हो जाएगी. नाज़रीन, आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी, कुछ और लोगों से हमने बात की. उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कोरोना से किस तरह रिकवर किया, और उसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि यूथ कैसे सोचती है, बुजुर्ग कैसे सोचते हैं. लेकिन सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये देखना है कि ये इलाका जो है शाह अल्लादित्ता पूरी यूनियन काउंसिल है, इस्लामाबाद की लोकल इंतज़ामिया DC ऑफिस में हम देखते हैं कि कोहर जमान वज़ीर साहब जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं सदर, और ये इलाका उनके पास है. उन्हीं के पास हम आए, उन्हीं से बात करेंगे. गौहर साहब, हमने देखा कि इस इलाके में बहुत सारे केसेस आए लेकिन रिकवर भी बहुत सारे हुए. आपने हिफाजती तदाबीर के तौर पर इस इलाके में किस तरह का अब कंट्रोल किया है कि इस पे कंट्रोल भी किया जाए, और अगर कोई एहतियात नहीं करता तो उसके साथ सख्ती भी की जाए? थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि शाह अल्लादित्ता एक सबर्बन डेंसली पॉपुलेटेड आबादी का एक गांव है. वहाँ पर जब इनिशियली हमारे पास 2-3 केसेस आ गए, फिर हमने जब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तो फर्दर केसेस को 15-20 तक पहुँच गए. जब इस अलार्मिंग स्टेज आई तो हमने वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन की, और शाह अल्लादित्ता का स्मार्ट लॉकडाउन एक बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल लॉकडाउन था. एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है वो पूरे हमारे मुल्क में इस पर अमल करने के लिए. हमने लॉकडाउन किया, उसको तमाम हर तरफ से उसको सील किया, लोगों की मूवमेंट को रोका, और लेकिन हमने साथ साथ इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर किया कि फूड सिक्योरिटी का मसला ना हो, लोगों को खुराक, अद्वियात और जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको मिलें. हमने वहाँ पर यूटिलिटी कॉरपोरेशन के 3 ट्रक जो कि रोज़ाना की बेस पे वहाँ पे मुख्तलिफ गलियों में हर जगह जाते थे ताकि लोगों को जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनके घर के दहलीज पे मिलें. इसके अलावा भी हमने 1-2 फार्मेसीज़ को भी अलाउ किया था कि जी आप भी जारी रखें एज़ पर SOP, लेकिन उसके अलावा तमाम चीज़ें बंद थी. उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने 2 हफ्ते एक इतना अच्छा और मौसर लॉकडाउन किया कि जो केसेस थे वो उसी नंबर पे रुक गए, और ये जितने भी केसेस थे ये माशाल्लाह 100% इन्होंने रिकवर किया है. हाँ, और वहाँ पर फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने डेली बेस पे रैंडम सैम्पलिंग की. ये हमारा एक तरीक़ेकार होता है SOP के मुताबिक कि जब भी हम लॉकडाउन करते हैं तो हमारी हेल्थ की टीमें रैंडम सैम्पलिंग करती हैं. तो 150 से 200 तक वहाँ पर उसके बाद सैंपल लिए गए और वो तमाम सैंपल नेगेटिव थे. तो ये इस मौसर लॉकडाउन की बैसियत वहाँ पर ना कोरोना उस तरह फैला, और जो भी लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे वो बहुत अच्छी तरीके से उनकी दोबारा रिकवरी. बहुत सारे लोग रिकवर किए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उनको देख रहे हैं हम कि वो इस बीमारी का शिकार है, एहतियात नहीं हो रही. उनके लिए अगर कोई मैसेज करेंगे, लोग कहते हैं कि सख्ती होनी चाहिए, उन पर जुर्माना होना चाहिए, और अगर कोई जानबूझ के कैरियर बन के बहुत सारे लोगों के लिए नुकसानदेह होता है तो उसको सख्त सजा भी मिलनी चाहिए. मैसेज करना चाहिए. जी, अब मैसेज ये है कि एक तो हमारे गवर्नमेंट की अभी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं. जो भी बंदा हमें बगैर मास्क के नजर आता है हम उसके खिलाफ 188 के तहत बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं, उनको ऑन स्पॉट जुर्माने करते हैं. ये सिलसिला तो हमने पूरे इस्लामाबाद में शुरू किया हुआ है.
اسی طرح جو بھی بزنس انٹرپرائزز ہیں، سٹورز ہیں، اسی طرح کی دکانیں ہیں، وہاں پر بھی اسٹرکٹ SOP ہے کہ جو عملہ ہے اس نے خود بھی ماسک پہنا ہو، اور اگر کسی بھی دکان میں، کسی بھی بزنس انٹرپرائز میں کوئی اور کسٹمر بھی ایسا اندر ہمیں مل جائے کہ جس نے ماسک نہیں پہنا، تو اس کسٹمر کے خلاف بھی ہم کارروائی کرتے ہیں اور اس دکان کو ہم سیل کرتے ہیں۔ میں صرف کل کی آپ کو اگر اگزامپل دوں تو ہم نے اتنی میسو کارروائی کی ہے کہ تقریباً صرف میرے صدر کے سب ڈویژن میں ہم نے 25 سے 30 دکانیں یونٹس کو سیل کیا ہے۔ یہ ناظرین آپ بات سن رہے تھے AC صدر گوہر زمان وزیر کی۔ کہنا صرف اتنا ہے کہ جب انسان اپنی سطح سے نیچے گرتا ہے، بے ضمیری کی آخری حدوں پہ پہنچتا ہے، تو پھر وہ انسانیت کے بارے میں نہیں سوچتا، صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے۔ آج کی حکومت، وزیر اعظم پاکستان عمران خان، ان کی حکومت، لوکل انتظامیہ، DC حمزہ شفقات اور ان کی ٹیم عمران خان کی ویژن کو لے کے آگے چل رہی ہے۔ اس لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ اگر کوئی قانون شکنی کرے گا، اگر کوئی ماسک اور سینیٹائزر اور ان کی خلاف ورزی کرے گا اور وہ بیماری کا سبب بنے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور اگر کوئی پلازما کی خرید و فروخت میں ملوث پایا گیا تو اس کو بھی بچت نہیں ملے گی، اس کو بھی سخت سزا ملے گی۔ یہ اس وقت کا تقاضا ہے۔ ہم نے مل کر اس وبا سے نجات حاصل کرنی ہے۔ ہم نے مستقبل کا پاکستان بنانا ہے، وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، جو علامہ اقبال کا پاکستان ہے اور جو عمران خان کا پاکستان ہے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ٹمارو ٹوڈے DW کا سائنس شو۔ آگے آ رہا ہے کانسٹنس جھیل کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات، تاریخ دان ماضی میں جھانک رہے ہیں۔ میکسیکو میں ایک معجزہ سمندری کائٹ سے مکانات بنا رہا ہے، اور معلوم کریں گے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے پلاسٹک کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ سمندر کے کنارے 10 کلومیٹر میں بکھرے ہوئے 170 سنگی ٹکڑے اور چٹانیں ہزاروں برس سے موجود تھے، لیکن کسی کی توجہ ان پر مبذول نہ ہوئی اور یہ کانسٹنس جھیل کے پانیوں میں مدغم ہوتے رہے۔ یہ جھیل وسطی یورپ میں واقع ہے۔ ان سے انسانی کوشش سے تعمیر کردہ ایک قابل ذکر یادگار بنائی گئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس یادگار کی تعمیر میں 1,20,000 ٹن پتھر استعمال ہوا ہے۔ قریباً اتنا ہی پتھر کولونج کے گرجا گھر کی تعمیر میں بھی استعمال ہوا تھا۔ اگر ایک پتھر کا اوسط وزن 2 کلو ہو تو جھیل پر موجود ان آثار کا وزن 60 ملین ٹن ہوگا۔ آج اس کام کو کرنے کے لیے 8,000 ٹرک چاہیے ہوں گے جو یہ پتھر مطلوبہ مقام تک پہنچا سکیں۔ تازہ ترین تحقیقات کے مطابق اس زمانے میں یہ پتھر انسانوں نے پہنچائے تھے۔ یہ یادگار کب اور کیوں تعمیر کی گئی تھی، اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ 2019 کے موسم گرما میں ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے کانسٹنس جھیل پر کھدائی کا ایک مختصر یونٹ لگایا۔ ان کا مقصد یہ جاننا تھا کہ مذکورہ یادگار کب بنائی گئی تھی۔ برن یونیورسٹی کے ماہر ارضیات اینسل مٹی اور ان کی ٹیم ارضیاتی کھدائی کے ماہر ہیں۔ وہ لوگ جھیل کی تہہ سے کھدائی کر کے پتھروں کے نمونے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے اس یادگار کے وقت تعمیر کا اندازہ کر سکیں۔ پہلا کام ریگ لگانا ہے، پھر اسے مطلوبہ مقام تک کھدائی کے لیے GPS کی مدد سے لے جانا ہوگا۔ ماہرین آثار قدیمہ اور ماہرین ارضیات کا مجموعی علم اس معاملے میں کافی ثابت ہوگا۔ میرے خیال میں کھدائی کر کے ہم ان آثار کی عمر کا بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا یہ واقعی زمانہ قبل از تاریخ کا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ دھات کے زمانے میں بنایا گیا تھا یا پھر پتھر کے زمانے میں؟ اس ٹیم کو توقع ہے کہ پتھروں کے گرد جمی تہ کی مدد سے زمانہ تعمیر کا تخمینہ لگانا ممکن ہوگا۔ ہم کھدائی کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ تہ مل سکے تاکہ ان تہوں کے جمنے کے وقت کا اندازہ ہو سکے۔
سائنسدانوں نے اس مقام کا تعین کرنے کے لیے زمین کے اندر مار کرنے والا ریڈار استعمال کیا ہے. انہوں نے وہاں موجود طے بر طے پتھروں کی نشاندہی کی ہے. اگر محققین اس یادگار کی عمر کا اندازہ ایک کھدائی کے نمونے سے ہی لگا سکیں تو مزید کھدائی سے بچا جا سکتا ہے. اس تجربے کا بنیادی اوزار پلاسٹک کی ایک ٹیوب ہے جو ڈرل کر کے اندر پہنچائی جائے گی. ڈرل کے اوزار اور پلاسٹک ٹیوب کو تیار کر لیا گیا ہے. کام شروع کرنے کا وقت آ پہنچا. ہتھوڑا مار ڈرل سے جھیل کی تہہ میں 6 میٹر گہری کھدائی ہوگی. مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے بعد سائنسدان اسے واپس کھینچیں گے تاکہ پائپ میں موجود ہال کو نکال کر کراس کا جائزہ لیا جائے. اب تک سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے. ٹیوب میں طے در طے لگا پتھر جمع ہو رہا ہے. اب ہم اسے لبے لبے نمونوں کی صورت میں کاٹ کر تجربہ گاہ بھیج دیں گے جہاں اس کا مکمل معائنہ کیا جا سکے گا. ان نمونوں میں جھیل کی ہزاروں برس کی تاریخ کے راز پنہا ہیں اور شاید یہ خبر بھی ہے کہ یہ یادگار کتنی قدیم ہے. یہ برن یونیورسٹی کے شعبہ ارضیات میں ایک خوبصورت کمرے کی کھدائی کے چند روز بعد کا منظر ہے. انسل مٹی اور ان کی ٹیم پلاسٹک ٹیوب میں موجود طے در طے پتھروں کا بغور جائزہ لے رہی ہے. انہوں نے واضح تر تہوں کا پہلے ہی جائزہ لے لیا ہے. جس نمونے کا ہم نے جائزہ لیا ہے وہ ایک 6 میٹر گہرے شگاف سے نکالا گیا تھا. اس کی اوپری سطح موجودہ جھیل کی اوپری تہہ ہے اور نیچے ہزاروں برس قبل کی اس وقت کی سطح رہی ہوگی. ریڈار سے لی گئی تصاویر کے مطابق پرانی تہہ 3 میٹر بعد شروع ہوتی ہے. اسے یہاں کسی جگہ ہونا چاہیے. ہم اس جگہ وہ مقام دیکھنا چاہتے ہیں جہاں سے یادگار کی تعمیر شروع کی گئی ہوگی. اس تحقیق کے لیے ہم اسے کاٹ کر اس میں موجود نامیاتی مادے کو تلاش کریں گے اور پھر اس نامیاتی مادے کو ریڈیو کاربن کی جانچ کے طریقے سے پرکھیں گے. تجربہ گاہ میں پلاسٹک ٹیوب میں موجود مواد کے لمبے لمبے کتلے کاٹ لیے گئے ہیں. طے در طے پتھروں کو احتیاط سے الگ کر لیا گیا ہے. کھولیے اسے. شاباش. اب اسے واپس نیچے رکھیے. ٹھیک ہے. کونے کو سامنے رکھیے. تھوڑا سا زور دیجیے. واپس کھینچیے تاکہ سامنے آ جائے. بالکل ٹھیک. زبردست. اسکینر سے اندرونی طے کا ہو بہو عکس نظر آتا ہے. اس سے نامیاتی مادے الگ کیے جائیں گے. اگر آپ کیمرے کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو اس میں سیاہ نشانات نظر آئیں گے. ہمارے خیال میں یہ نامیاتی مادہ ہے. پودوں کی باقیات مناسب مقدار میں ہیں اور اس سے وقت کا اندازہ ہو سکتا ہے. اب اسے الگ کرنے کے لیے ہم ایسے اور نمونے اکٹھے کریں گے. اگر نامیاتی مادے نہ مل سکے تو کاربن ٹیسٹ سے زمانے کا تعین کرنا ممکن نہ ہوگا. خوش قسمتی سے ماہرین ارضیات نے بوسیدہ لکڑی اور پودوں کی باقیات الگ کر لی ہیں. ہم نے کچھ نہ کچھ نکال لیا ہے. زیادہ نہیں لیکن ہمارے پاس چند چھوٹے اور ایک بڑا ٹکڑا ایسا ہے جسے ہم کاربن لیب بھیج کر اس کی تاریخ کے تعین کا ٹیسٹ کرا سکیں. ان آثار کو جانچنے کے لیے ایک باقاعدہ نظام موجود ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا مواد بھی. سنوک زیدت اور ان کی ٹیم کاربن کے C14 آئسوٹوپ کا باریک بینی سے معائنہ کر رہے ہیں. جہاں بھی کاربن میسر ہو اس میں C14 نکالا جا سکتا ہے. یعنی ہر زندہ چیز میں سے اور زندہ اشیاء کے باقیات میں سے بھی اس کی جانچ ہو سکتی ہے. آپ کو جہاں بھی کاربن ملے C14 بھی مل جائے گا. کاربن کو ایک خاص طریقے سے صاف کر کے جانچ کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اگر ان کے C14 کا جائزہ ممکن ہو تو ان کی عمر بھی معلوم کی جا سکتی ہے.
किसी मवाद के C14 के गलने के अमल का जायजा लेकर इसकी उम्र का अंदाजा किया जा सकता है। हमें एक ताज़ा मवाद के ताज़ा C14 और इसकी हालात के बारे में इल्म है। हम इसे किसी पुराने नमूने से तकाबुल करके इस पुराने नमूने के दर्जे शिकस्त और रीख से इसकी उम्र का अंदाजा कर सकते हैं और ये भी कि ये कितना पुराना है। सैंपल टेस्ट करने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। सिर्फ 400 माइक्रोग्राम मवाद दस्तयाब हुआ है, यानी कि 0.00 ग्राम, लेकिन ये मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए बहुत है। यह मशीन माल को निहायत छोटे छोटे ज़रात में तकसीम कर देती है, जिससे सिर्फ C14 बाकी रह जाता है। स्नोक ज़ीदात के बकौल इस टेस्ट की यही बुनियाद है। हम इसे यहाँ नीचे जांच सकते हैं और हम देख सकते हैं कि ये मवाद 3400 या 3650 बरस कब्ल मसीह का है, तो अंदाज़न ये मवाद 5500 साल पुराना है। 5500 साल पुराना मवाद, इसका मतलब है कि ये यादगार पत्थर के जमाने की है। माहिरीन आसार कदीमा का भी जवाब नहीं। उन्होंने झील की सतह से कीचड़ निकाला और इसमें से चंद पत्थरों को जांचने के लिए सतह आग पर ले आए। माहिर आसार कदीमा एरिस ल्यूजिंगर अपनी दरियाफ्त के बारे में बताते हुए कहते हैं, ब्लॉक में कभी एक नाजुक सी किनारी थी और बहुत कम सामने आने वाली बात यह है कि इस पत्थर में इस नाजुक का कुछ हिस्सा अब भी मौजूद है। अगरचे इसे हटा लिया गया था, लेकिन करीब से देखने पर साफ नजर आता है कि किसी ने कभी यहाँ नेज़े ऐसी चीज मारी थी, और क्योंकि इस निशान की बाकायदा शक्ल है जिससे ये पता लगता है कि ये बाकायदा तैयार करदा औजार या हथियार था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये यादगार की तामीर के दौरान ही हुआ होगा। तहकीकात करने वाले कहते हैं कि इस यादगार के बारे में मजीद हकाइक सामने आने की उम्मीद है। कॉन्स्टेंस झील पर उस यादगार को बनाने वालों से मिलने के लिए हमें माजी में सफर करना होगा, कुरूने वुस्ता से पीछे जाना होगा, सल्तनत रोमा का जमाना तय करना होगा, कबल मसीह में जाना होगा और वहाँ से धात का जमाना पीछे छोड़कर पत्थर के जमाने में पहुँचना होगा। ये सफर 5500 बरस पहले के जमाने तक का है। ऐसे वक्त में जब गालिबन यूरोप की आबादी बहुत कम हुआ करती थी और झील के किनारे पहाड़ियों पर छोटे छोटे घर होते थे, उस वक्त मौजूदा जमाने के बरखिलाफ जवानों की अक्सरियत रहा करती होगी। बहुत कम लोग बुढ़ापे तक पहुंचते होंगे। जिंदगी सख्त और सादा होती होगी। लोग काश्तकारी, गल्ला पानी और शिकार करते होंगे और कबीलों की सूरत में रहा करते होंगे। शरह अमवात के ज्यादा होने का मतलब ये होता होगा कि खवातीन की जो जिंदगी अता करती हैं बहुत कदर की जाती होगी, जैसा कि मिट्टी के इन बर्तनों से जाहिर होता है जिनमें औरत के सीने के उभार दिखाए गए हैं, और दीवार पर नस्ब इस मुजस्मे से भी जो यूरोप का सबसे कदीम और बड़ा मुजस्समा है, इसमें भी मिट्टी से सीने के उभार बनाए गए हैं। ख्याल किया जाता है कि ये मुख्तलिफ औकात में खवातीन हुक्मरानों की नुमाइंदगी करते हैं। मशहूर जमाना मेरिल भी कॉन्स्टेंस झील के पास ही पाया गया था। इस बात को किसी सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है कि यूरोप में पत्थर के जमाने में भी जिंदगी मौजूद थी। इस इलाके में कुछ मवाद और अशिया ऐसी दरियाफ्त हुई हैं जिनसे मालूम होता है कि इन्हें तमाम खित्ते से जमा करके लाया जाता है। इनमें तांबा, मिट्टी, पत्थर और जेवर के नमूने शामिल हैं। एक और शय जो यूरोप भर में हुआ करती थी वो संगी मुजस्समे हैं। इंसानी हाथों से बनाए गए बड़े बड़े मुजस्समे, जैसा कि इंग्लिस्तान का स्टोनहेंज और ब्रिटानी का कार्निक है, और इन यूरोप के पास कॉन्स्टेंस झील के अतराफ वाक़े स्विस स्टोनहेंज भी है। साइंसदान यकीनन ये जानना चाहते हैं कि इन चट्टानों का क्या मकसद था। मुमकिन है कि पत्थर के जमाने के लोग अपने मौसम सरमा और गर्मा के त्योहार मनाने के लिए उन्हें तामीर करते हों। इन पत्थरों को सूरज के रास्ते में नस्ब किया गया है। ये भी हो सकता है कि वो इन पत्थरों की चोटियों पर अलाव जलाते हों किसी इबादत के लिए। ये अभी तक इस झील के पोशीदा राजों में से एक है। एक और काबिले जिक्र दरियाफ्त नियानदरथल का ढांचा है जो हाल ही में इराक की शयदार गार से मिला है। ये 70,000 साल पुराना है। जिस हालत में ये जमीन में मौजूद था, इससे अंदाजा होता है कि उसे एहतियात से दफनाया गया होगा।
बायां हाथ सर की जानिब मोड़ा गया था, जबकि दायां हाथ सीने की तरफ। सर के नीचे पत्थर का एक टुकड़ा रखा गया था। गुज़िश्ता 25 सालों में होने वाली ये बेहतरीन मजबूत तरीन दरियाफ्त है। माहिरीन को उम्मीद है कि उससे उन्हें मज़कूरा मुआशरे के तक़सीम के रस्म व रिवाज के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल होंगी। हमने आपसे फेसबुक पर पूछा था कि आपके ख्याल में आसार कदीमा के माहिरीन 5000 साल कबल के जमाने का क्या दरियाफ्त करेंगे। टॉफल जो इंडोनेशिया से हैं, उनका कहना है कि वो बेकार होने वाले मोबाइल फोन, कंप्यूटर और गाड़ियां दरियाफ्त करेंगे। निकोलस इस बारे में मनफी राय रखते हैं। उनका कहना है कि 5000 साल कबल आबादी यूं भी कम होती थी। इस वक्त में आसार कदीमा के माहिर नहीं होते होंगे। मेक्सिको से अल्फांसो ने मजाकतन कहा है कि उन माहिरीन को वो तमाम मोज़े मिलेंगे जो वॉशिंग मशीन में गुम हो जाते हैं। और शेरी का कहना है कि बेकार हो जाने वाले फोन और दीगर अशिया के साथ साथ उन्हें प्लास्टिक के बहुत ज्यादा नमूने हासिल होंगे। दरहकीकत आज जो हम प्लास्टिक बना रहे हैं, ये हजारों बरस तक बाकी रहने के काबिल है। हर साल 8 मिलियन प्लास्टिक समंदर बर्द हो जाता है और फिर समंदरी हरकत से एक एक जगह जमा होता रहता है। ये समंदरी हरकत जमीन पर जिंदगी का वजूद बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये हरकत होती कैसे है? समुद्री करंट कैसे बनता है? समुद्र में वसी दरिया की मानिंद पानी कैसे चलता रहता है, जो लहरों के मद्दोजर से तकसीम होता रहता है। ऊंची लहर किनारे की तरफ जाती है, जबकि छोटी लहरें इससे दूर भागती हैं। समुद्र में बनने वाले करंट तेज आंधियों से चलते रहने से वजूद पाते हैं। मजीद ये कि दर्जे हरारत में आने वाली तब्दीलियां भी इन करंट्स पर असरअंदाज होती हैं। ठंडा और नमकीन पानी गर्म और कम नमकीन पानी के मुकाबले में भारी होता है, इसलिए वो समुद्र की तह में डूबता है। पानी की रफ्तार साहिली इलाके के जोग्राफिये पर मुनहसिर होती है। दर्जे हरारत और पानी की नमकीनी से बनने वाला ये करंट आलमी राब्ते का एक बेल्ट भी तैयार करता है। इस निजाम से दुनिया भर में समुद्री पानी पहुंचता है। ये समुद्री करंट माहौलियात पर ज्यादा असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पे हेम्यूल्ट करंट की वजह से अंटार्कटिका से हयातियात से लबरेज ठंडा पानी साल के 6 माह तक गैलापैगस जजायर तक आता रहता है, जिससे छोटी जानदार अशिया और काई वगैरह को खुराक मिलती रहती है, जिससे खुराक की चेन की बुनियाद बनती है और समुद्री मछलियां और दीगर हयातियाती चीजों को खाने के लिए छोटी जानदार अशिया और काई दस्तयाब होती है। ये खुराक पाने वालों में इगुआना भी शामिल है, जो वाहिद छिपकली है जो समुद्र में जिंदगी गुजारती है। इसी असला में खुश्की पर जिंदगी कठिन होती है। बारिश मुश्किल से कभी कभार होती है। जंगली हयात बशमूल गैलापागोस कछुओं को खुराक की तलाश में बहुत सफर करना पड़ता है, लेकिन साल के दूसरे हिस्से में खुराक वाफिर मकदार में दस्तयाब होती है। ये उस वक्त होता है जब मगरिबी मौसम आ जाता है और इसमें पानामा का करंट गर्म पानी लाता है, जो इतनी हयातियात नहीं लाता। उस वक्त समुद्र के आबी जानवरों को खुराक की तलाश में सफर करना पड़ता है और वो निस्बतन ठंडे पानियों का रुख करते हैं। लिहाजा चूंकि माहौलियाती तब्दीलियां समुद्री करंट को मुतासिर कर रही हैं, इससे मालूम होता है कि इस पर मुफस्सिल तहकीकात होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि समंदरी करंट समंदरी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। ज़ेरे आब हयात के लिए ऑक्सीजन से लबरेज ठंडे पानी का करंट कलीदी हैसियत रखता है, लेकिन कई मरतबा मकामी करंट में एक जिन्स की बहुतात की वजह से खराबी आ जाती है, मसलन किसी किस्म की समंदरी काई। लेकिन मेक्सिको में एक मौजूद ने इसके इस्तेमाल का एक तरीका दरियाफ्त किया है। भूरे रंग की समंदरी काई मेक्सिको के साहिलों पर मौजूद है। माहौलियात और सयाहत की सनत के लिए तबाकुन है, लेकिन उमर वास्कोस के लिए ये एक मुफ्त में दस्तयाब तामीराती माल है। हम सारा पानी निकाल कर इसका गंद साफ कर लेते हैं। ये अमल हम उस वक्त तक जारी रखते हैं जब तक समंदरी काई इससे अज खुद नामियाती मिट्टी बरामद न कर ले। उमर अपने तर्ज की ईंटें तैयार करते हैं, जिसमें 60% समंदरी काई होती है।
कई मिलियन टन माइक्रो इंची साल भर में पोकाटन के जजीरे नुमा में जमा हो जाती हैं। पिछले 10 बरस से ये मसला शिद्दत इख्तियार कर गया था। इंसानी अमल से वजूद में आने वाली आलूदगी से ये मसला पैदा हुआ है। इन तमाम कीमियाई मादों और सफाई और धुलाई में इस्तेमाल किए जाने वाले मादों के बायस जो बिलाखिर समंदर बुर्द हो जाते हैं, इनसे एलजी को खुराक मिलती है और बढ़ते रहने का मौका भी। हर रोज वेरोनिका और इनकी टीम काई जमने के वक्त साहिल की सफाई करती है, जिससे सल्फर का तेजाब और खतरनाक गैस खारिज होती हैं, जो समंदरी हयात के लिए खतरनाक हैं। उमर जैसे लोगों के काम में मदद करना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ समंदर काई जमा करते हैं और फिर उन्हें दे देते हैं जो उसका कुछ कर सकें। बुनियादी बात ये है कि ये काई माहौल को खराब न कर सके। वेरिक्वेस और इनकी टीम समंदरी काई को कीचड़ और दीगर नामियाती फसलों में पैरों से चलाती है ताकि वो सख्त हो जाए। एक घर तामीर करने के लिए 20 टन समंदरी काई की जरूरत पड़ती है। उमर दरअसल एक बागबान है जिसने खाद बनाने के लिए समंदरी काई का शुरू में इस्तेमाल किया था। बाद में उन्हें ख्याल आया कि इससे तामीराती काम भी किया जा सकता है और ये भी कि उनकी बनाई हुई ईंटों से माहौल खराब नहीं होगा। अपने इस तस्वुर के बाद से मैं मुस्तकिल इस काम को बेहतर बनाने में मशगूल था। अब हम पेटेंट हैं और बेहतरीन नामियाती ईंटें तैयार करते हैं। वेस्क्विस ने ये घर एक ऐसे खानदान को दिया है जिनका अपना घर आतिशज़दगी में खत्म हो गया था। मकामी आबादी का 1/3 हिस्सा बहुत गरीब है। इन गरीब लोगों में मोनिका गोम्स और इनके 6 अदद बच्चे भी शामिल हैं। ये मकान हमारे पुराने मकान के मुकाबले में ठंडा भी है। इसमें गर्मी कम लगती है। अब तो मेरे बहुत से हमसाए भी ऐसा मकान बनाना चाहते हैं। सरगासम ईंटें सीमेंट के मुकाबले में कम कीमत और लकड़ी के मुकाबले में मजबूत हैं। इनमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मैंने कुछ नया इजाद नहीं किया। मैंने तो जमीन को इसकी मता वापस कर रहा हूँ। हाँ, मैंने एक मसले को मौके में जरूर बदला है। ये तजर्बा माहिरीन की नजर में बहुत ज्यादा काबिल अमल है। उमर के साथ एक मकामी होटल की चेन ने काम शुरू किया है जिसमें वो अपना एक होटल उमर की तैयार करदा ईंटों से बनाएंगे। बैरून मुल्क की बात कंपनियों ने भी इसमें दिलचस्पी का इजहार किया है और मेक्सिको के कैरेबियन साहिलों पर समंदरी काई की कोई किल्लत नहीं है। कचरे को किसी काबिले इस्तेमाल शय में बदलने के कई माकूल तरीके बताए जा रहे हैं, जैसे प्लास्टिक से नफीस मलबूसात तैयार करना, मसरूका बोतलें इकट्ठी करके उनसे कश्ती बना लेना, हत्ता के घर तामीर कर लेना, या प्लास्टिक को ऐसे रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज बहुत कम हो। लेकिन अब मुहक्किकीन की एक टीम कार्बन डाइऑक्साइड से प्लास्टिक तैयार करना चाहती है। प्लास्टिक क्लास के किसी गुंडे या दहशतगर्द की तरह हो गई है जिसे कोई देखना ना चाहता हो। इस रवैये के कोई मुनासिब दलाइल भी हैं। हालांकि घरेलू इस्तेमाल की अशिया से लेकर तामीराती साजो सामान तक और गाड़ी से हवाई जहाज तक इसका मुफीद इस्तेमाल भी हो रहा है। प्लास्टिक कार्बन पर मुश्तमिल एक ऐसी शय है जिसे खाम तेल से निकाला जाता है। यही वो चीज है जिसे 3 कीमियागर बैरेट स्ट्रिंजेंट, क्रिस्टोफ ग्रिलर और वॉल्टर लेमिस बदलना चाहते हैं। अब तक प्लास्टिक को खाम माल से निकाला जाता रहा है जो महदूद मिकदार में दस्तयाब है, जबकि एक जरिया ऐसा है जो लामहदूद है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है। जरा सोचिए कि प्लास्टिक बनाने के लिए अगर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मयसर हो जाए तो इसकी माहौल में नामुनासिब शरह भी कम हो जाएगी, यानी एक तीर से 2 शिकार। लेकिन मुहक्किकीन सिर्फ ऐसी प्लास्टिक तैयार करना ही नहीं चाहते, बल्कि वो आसानी से असर नौ से इस्तेमाल के काबिल बनाई जाने वाली प्लास्टिक तैयार करना चाहते हैं। अगर हम भी वही करें जो उन्होंने किया है तो सूरत हाल वैसी ही रहेगी। रिवायती प्लास्टिक में कार्बन के एटम की लंबी मॉलिक्यूलर लड़ियां होती हैं और बहुत से हाइड्रोकार्बन के एटम भी, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन प्लास्टिक बनाने के लिए इसकी दुरुस्त बॉन्ड बनाना जरूरी होता है। तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन तवानाई के साथ निकलते हैं और किसी और शय कीमियाई अमल करने के ख्वाहा होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल पुरअमन किस्म का होता है, कीमियाई अमल को बेताब नहीं करता।
और ये अमल अंगेज किया है। ये कोई जादुई शय नहीं है, बल्कि ये ऐसा कीमियाई मादा है जो 2 मॉलिक्यूल्स में कीमियाई अमल वाक़ करने में मददगार होता है। और ये सफेद पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अमल अंगेज है। ये कई साल की तहकीकात के बाद बनाया गया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को दीगर अनासर से कीमियाई अमल करने में मदद देता है। नतीजे के तौर पर ये गाढ़ा महलूल हमारे पास मौजूद है, एक पॉलीसेट्रिक मॉलिक्यूल में जिसमें कई ऑक्सीजन की एटम भी हैं। कई किस्म के प्लास्टिक तैयार करने में पॉलीओल का इस्तेमाल होता है, जैसा कि पॉलीपूरीथीन के गद्दों के लिए तैयार करदा फोम, जो कि माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से बनाए जाते हैं। हमारी इजाद के पस मंजर में जो तस्वुर है वो ये है कि ऐसा खाम माल हासिल हो जिससे बहुत सी अशिया तैयार की जा सकती हों और हम इलास्टिक फाइबर बनाने तक जा पहुँचे। इसका मतलब है कि आइंदा कार्बन डाइऑक्साइड से कपड़े भी बनाए जा सकेंगे, लेकिन ये कपड़े अगर हमेशा न रहे तो क्या होगा? यहाँ नई प्लास्टिक का एक और फायदा बताना जरूरी है कि इसमें मौजूद खुद टूट जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की लड़ियाँ उसे टूटने और रिसाइकिल होने में मदद देती हैं। हमारा मकसद एक दायरेकार को फाल बनाना है। अगले 10 बरस में हम मजीद रिसाइकिल की जाने के काबिल कीमियाई चीजें देखेंगे और इससे हमारे गर्दिशी मईशत के तस्वुर को भी काबिल अमल बनाया जा सकता है। मकसद खाम माल के ज़राए को कमतर बनाना है, एक रवायती मईशत से छुटकारा पाना है जिसमें बाकियात बहुत ज्यादा शामिल हो जाती हैं। एक गर्दिशी मईशियत के ख्वाब की तकमील करना मकसूद है। क्या साइंस का कोई सवाल ऐसा है जिसका जवाब आपको ना मिला हो? हम आपकी मदद करके खुश होंगे। हमें अपना सवाल वीडियो या ऑडियो या मकतूबे पैगाम की सूरत में भेजिए। अगर हमने अपने शो में शामिल किया तो आपको शुक्रिया का एक हैरान कुन पैगाम भी भेजेंगे। सवाल जरूर कीजिएगा। हमारे साथ हमारी वेबसाइट dw.com/science से राब्ता रखिए या ट्विटर और फेसबुक पर हमसे राब्ता कीजिए। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतिया जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। कुव्वत मदाफ़त पैदा करने वाले फल: चकोतरा, माल्टा, लीमू। पपीते में विटामिन सी का जखीरा होता है। दिन भर में दरकार विटामिन सी की मिकदार का 224% एक पपीते से हासिल हो सकता है। कीवी में न सिर्फ विटामिन सी बल्कि पोटेशियम की भी वाफिर मिकदार मौजूद होती है।
खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए।